Good morning, students. Yesterday we have seen a brief description of switching, what is circuit switching, matrix switching and packet switching. Now we will elaborate this concept. So here, first of all, what is circuit switching? Yes, so in a circuit switching, see this figure. This is device A and this is device B. So first of all, communication is established between these two devices. So here this communication path is set from A to B. So that's why this direction is set from A to B. And device B is establishing communication to B to A from here. After communication is established between these two devices, data is transferred. So here this communication line is established. Now a data is transferred from device A to B and from device B to A. This is the concept of circuit switching. Here three steps are given to you: establish circuit, HL data transfer, then disconnect, circuit disconnect. So these are three basic steps how data is transferred from one device to another device. These are the circuits. So through that data is transferred. Now second concept is packet switching. So here this is different from circuit switching. Here fixed path is followed, while in packet switching path is not fixed. Our whole datagram is divided into equal small size packets or equal size segments, and the data is sent from one device to another device using routers. See here. So here if A is want to send the data to B, so it follows this path. After that it follows this path, then this path and this path. So here path is not fixed. Same way, whenever B is sending datagram to A, at that time equal size segments are all different kind of equal size segments are using different path. From this path, either from this path, either from this path or this path. So this is the concept of packet switching. It doesn't follow any specific path. Now next concept is pipelining. So pipelining means what? So computer doesn't have to wait for instruction. When it completes the execution of one instruction, the next is ready and waiting. Similarly, packet sent on communication line as soon as the line is available. See, using this figure, this is the concept of pipelining. So here data is sent from this, then this data is sent from this, and again the remaining data are sent from this. See here, data is coming from B to C, between B and C, then next data is sent from A to B. So this way data is sent from this way. So next data is attached to the network for transmission. Now this is the difference between circuit switching and packet switching. So what is the difference? So circuit switching is old and expensive, and it is what PSTN uses. So this concept is very old, yes, and PSTN is using this concept
Next is packet switching. So packet switching is modern. VoIP uses packet switching technology, voice over IP. Yes, this is a protocol. When we are using internet calling, at that time this protocol is used. So this protocol is using the concept of packet switching. Next difference is what? Resources remain dedicated to the circuit during the entire transfer and the entire message follow the same path. So here first communication is established between sender and receiver. The fixed path is established between them and then data is transferred. Path is not changed. While in packet switching, that is a different scenario. Here path is not fixed. Why? Because whole datagram is divided into equal size packets, and these packets are using different routes. Why? Because to reach destination at minimum time, so that's why they are using different routes. So here they doesn't follow any fixed path. Now what is the third difference? So in a third difference, during entire transfer the entire message follows the same path. पूरा मैसेज है वो एक ही पाथ फॉलो करेगा, जबकि पैकेट स्विचिंग में क्या है? पैकेट मतलब डेटाग्राम को पैकेट में डिवाइड किया, इक्वल साइज सेगमेंट में डिवाइड किया, और वो एंटायर सेम पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, वो डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहा है. दिस इज द थर्ड डिफरेंस. यहाँ पे फोर्थ डिफरेंस है कि सर्किट स्विचिंग इज मोर रिलायबल देन पैकेट स्विचिंग. क्यों? व्हेन यू हैव अ सर्किट dedicated for session, you are sure to get all information across. When you use a circuit which is open for other services, then it is a big possibility for congestion. ठीक है, यहाँ पे ये इट इज़ मोर रिलायबल, क्योंकि एक ही पाथ फॉलो कर रही है और एक ही पाथ के थ्रू वो डेटा है वो ट्रांसमिट करती है. जबकि पैकेट स्विचिंग में क्या है, वो एक पाथ फॉलो नहीं करता है. जब ट्रैफिक का प्रॉब्लम जनरेट होता है तो वो पैकेट कई बार डिस्ट्रॉय भी हो जाता है. ठीक है, सो पैकेट स्विचिंग इज लेस रिलायबल दैन सर्किट स्विचिंग. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग. अब नेक्स्ट आता है मैसेज स्विचिंग. ठीक है, तो मैसेज स्विचिंग क्या है? So in telecommunication, message switching was precursor of packet switching, where the messages are routed in their entirely one hop at a time. ठीक है, मतलब पूरा मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह पे होप करना मतलब जंप करना. ठीक है, सो अ फॉर्म ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क, मतलब होल मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ठीक है, एक स्विच में से दूसरी स्विच में पूरा मैसेज वो ट्रांसफर होता है. ठीक है, मतलब स्टोर होता है और फिर आगे ट्रांसफर होता है, मतलब फॉरवर्ड होता है. सो दैट डेटा इज ट्रांसमिटेड इनटू नेटवर्क एंड स्टोर्ड इन अ स्विच. ठीक है, नेटवर्क में ट्रांसफर होता है और स्विच में स्टोर्ड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल इज अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर मैसेज स्विचिंग सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे सिंपल उसका एक एग्जाम्पल दिया है. ये सर्किट स्विचिंग होल्ड्स ऑल चैनल, मतलब पूरी चैनल है उसको होल्ड करती है. देखो यहाँ पे एक पाथ उसने फिक्स किया है, उस पाथ के थ्रू यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम SACET. दिस इज द फिक्स्ड रूट. थ्रू दिस फिक्स्ड रूट डेटा इज ट्रांसमिटेड इन सर्किट स्विचिंग. नाउ if we are talking about message switching, so what happened in message switching? See here, first data is transmitted from S to A, yes, then A to C, मतलब वो whole path है वो engage नहीं रखता है, that is second transmission. This one first transmission, second, then third and then fourth.
that is message switching. क्यों? The whole message is jump from one to this one to this, here to here, and here to there. So this is the concept of store and forward method. Yes. Okay. सिंपल ये है, वी हैव ऑलरेडी लर्न लोकल लूप मॉडेम्स क्या है, ADSL क्या है, एंड वायरलेस. So here the use of both analog and digital transmission for computer to computer call conversation is done by modem and decodecs. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, कैसे एनालॉग सिग्नल है वो कैसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे मॉडेम्स और कोडेक्स की यूज से होता है. तो देखो यहाँ पे दिस इज कंप्यूटर, दिस इज मॉडेम. ठीक है. यहाँ पे ये टोल फ्री ऑफिस है. ठीक है. दिस इज कोडेक. ठीक है. ये मॉडेम बैंक है. ठीक है. यहाँ पे ये ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है. ये डिजिटल लाइन प्रोवाइड करता है. यहाँ पे टोल फ्री है. ठीक है. यहाँ से जो डेटा है, ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसमिट होता है. ठीक है. लिखा है यहाँ पे डिजिटल वेव है. ठीक है. यहाँ से जाता है तो लोकल एनालॉग ट्विस्टेड पैर में जाता है. यहाँ से ट्विस्टेड मतलब डिजिटल टू एनालॉग ट्रांसमिशन होता है. ठीक है. मॉडेम कन्वर्ट करके यहाँ पे कंप्यूटर में सेंड करता है. ठीक है. तो कैसे डेटा है, कैसे एनालॉग फॉर्म में जो डेटा है वो कैसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो यूजिंग कोडेक एंड मॉडेम्स एनालॉग डेटा इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल एंड डिजिटल इज कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म. सिंपल यहाँ पे कंसेप्ट दिखा है कि सर्किट स्विचिंग में क्या है. तो यहाँ पे कॉल रिक्वेस्ट सेंड होती है, सिग्नल यहाँ पे मिलता है. ठीक है. टाइम इज स्पेंड हंटिंग फॉर आउटगोइंग ट्रंक. ठीक है. सिंपली कि यहाँ पे कॉल है वो एक्सेप्ट होता है. सो फ्रॉम A to big trunk, B to C and C to D. Simply whole message is transmitted. Whole path is engaged for circuit switching. मैसेज में पूरा मैसेज है वो जाता है. ठीक है. यहाँ पे कहीं पे डिले है. पैकेट स्विचिंग में क्या है, तो जो पूरा मैसेज है वो पूरा नहीं जाता बट वो स्प्लिट हो जाता है. ठीक है. इक्वल साइज पैकेट में डिवाइड होता है. पैकेट 1 2 3. ठीक है. फ्रॉम A to B में यहाँ इस तरह से होता है. जब B to C में जाता है, ठीक है, तो पैकेट A1 2 3 यहाँ पे इसी तरह से C to D में तो पैकेट 1 2 3 है. ये टाइम है. ठीक है. एक नेटवर्क में से दूसरे नेटवर्क में जाता है तो कितना टाइम लेता है उसकी बात कर रहे हैं. नेक्स्ट है पैकेट स्विचिंग. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपली उसकी कंपैरिजन दी है सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की. ठीक है. तो कॉल सेटअप दैट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है. डेडिकेटेड फिजिकल पाथ, यस ऑब्वियसली. तो पहले ही कनेक्शन डेटा ट्रांसफ़र होता है उससे पहले ही यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करके पाथ फिक्स्ड करते हैं. ठीक है. सो इट इज़ मैंडेटरी. यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है. ईच पैकेट फॉलो द सेम रूट, यहाँ पे है, यहाँ पे ज़रूरी क्योंकि हर एक पैकेट वो डिफरेंट रूट से ट्रांसमिट होता है. पैकेट्स अराइव इन ऑर्डर, यहाँ पे अराइव होगा क्योंकि यहाँ पे पाथ ही फिक्स कर ले. यहाँ पे अराइव मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं कि लास्ट में पैकेट सेंड किया तो वो फर्स्ट में कई बार मिल भी जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे पैकेट्स है वो ऑर्डर में अराइव नहीं होते हैं. इस स्विच क्रैश फैक्टर, ठीक है, कई बार स्विच क्रैश हो जाती है. यहाँ पे स्विच का यूज़ ही नहीं है तो नहीं होगा. बैंडविथ अवेलेबल, तो यहाँ पे फिक्स बैंडविथ है. यहाँ पे डायनेमिक है, डिपेंड्स ऑन नेटवर्क. ठीक है. कई नेटवर्क में ज़्यादा बैंडविथ होगी, कई नेटवर्क में स्लो कम बैंडविथ होंगे. ठीक है. क्योंकि हमारा पैकेट फिर डिफरेंट रूट से ट्रांसमिट हो रहा है. ठीक है. व्हेन कैन कंजक्शन अकर, कंजेशन अकर. कंजेशन मतलब ट्रैफिक कब अकर्ड होता है, तो सिर्फ सेटअप टाइम होता है तब. और यहाँ पे एवरी पैकेट पे क्योंकि एक यूज़र है वो डेटा सेंड कर रहा है. ऐसे बहुत सारे यूज़र्स होते हैं. ठीक है. तो नेटवर्क में बहुत सारे पैकेट्स होते हैं तो यहाँ पे कंजेशन का प्रॉब्लम है. ठीक है. यहाँ है पोटेंशियली वेस्टेड बैंडविथ, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है. स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन कहाँ पे है, तो पैकेट स्विच में है. ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे है क्योंकि पाथ फिक्स्ड है, यहाँ पे नहीं है.
चार्जिंग तो पर मिनट चार्ज है, यहाँ पे पर पैकेट चार्ज कर मतलब उसकी प्राइस लगती है। ठीक है, तो ये सिंपल डिफरेंस है सर्किट स्विचिंग का और पैकेट स्विचिंग का। यहाँ पे सिंपली बोला है कि जो मोबाइल टेलीफोन सिस्टम है, ठीक है, तो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिए कि फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फ़ोन से तो उसमें सिर्फ एनालॉग वॉइस का यूज़ होता था। ठीक है, उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया है IMTS। ठीक है, तो IMTS का फुल फॉर्म है इम्प्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सिस्टम। ठीक है, वो एक रेडियो सिस्टम है, तो दैट इज़ लिंक टू पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, बिफोर द एरा ऑफ सेल्यूलर मोबाइल। ठीक है, तो ये पहले का जो फर्स्ट जनरेशन के जो मोबाइल फ़ोन है उसकी बात है। सेकंड है सेकंड जनरेशन मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो वो डिजिटल वॉइस उसमें मतलब उसमें डिजिटल वेव का यूज़ होता था, तो उसका एग्जांपल्स है GSM, CDMA एंड PDC। ठीक है, PDC जो मोबाइल है वो सिर्फ जापान में यूज़ होते थे। ठीक है, हमने यहाँ पे GSM और CDMA मोबाइल फ़ोन्स देखे हैं, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ GSM स्टैंड्स फॉर। सो GSM स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एंड CDMA स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि जो GSM है, ठीक है, वो FDMA टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। FDMA मीन्स फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, एंड TDMA टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, आपने पहले देखा, अभी मैंने एक लेक्चर पहले ही आपको पढ़ाया था कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होती है, टाइम डिवीजन है वो कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होती है। ठीक है, तो GSM है वो दोनों टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जबकि जो CDMA है, ठीक है, वो सिर्फ कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मतलब उसका यूज़ करता है। ठीक है, CDM है वो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है। ठीक है, वो भी उन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। GSM है दैट इज़ ग्लोबली वाइडली यूज्ड एंड अवेलेबल, और CDMA है वो फ्यूअर कंट्री में ही अवेलेबल है। जैसे अगर मैं इसका सिंपल अगर एग्जांपल दूँ कि अभी के मोबाइल जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो GSM वाले मोबाइल हैं। ठीक है, पहले हम जो रिलायंस वाले मोबाइल यूज़ करते थे, टाटा के मोबाइल यूज़ करते थे, तो उसमें क्या होता था कि उसके साथ उसका सिम कार्ड आता था, वो सिम कार्ड वही उसके फ़ोन में ही चलता था, है ना। तो वो है CDMA वाले मोबाइल्स। ठीक है, और अभी क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि मोबाइल कोई भी हो और सिम कार्ड कोई भी हो तो चलता है। ठीक है, तो वो हमारे GSM वाले मोबाइल्स हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। और जो कस्टमर जो इन्फॉर्मेशन है वो सिम कार्ड में स्टोर कर सकता है, किस में, जब हम GSM वाले मोबाइल यूज़ करते हैं तब, जबकि CDMA में ऐसा नहीं है, वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो फ़ोन में स्टोर होती है। तो ये इन दोनों के बीच के बेसिक डिफरेंस थे। ठीक है, तो ये सेकंड जनरेशन मोबाइल फ़ोन्स है। थर्ड जनरेशन मोबाइल फ़ोन में क्या है, तो डिजिटल वॉइस एंड डेटा का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अगर आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप जो हमारा गूगल मीट पे जो सेशन हो रहा है, ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशन, तो उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो जब भी डाउट सॉल्विंग सेशन है तो उससे पहले एक बार वीडियो लेक्चर है वो ज़रूर देखिए। ठीक है, आपके जो डाउट है वो लिख के रखिए, और जब भी डाउट सॉल्विंग सेशन हम गूगल मीट पे लेते हैं तो उस टाइम पे आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हम आपका डाउट जो भी है वो आपका सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार ये PPT है, ये PPT मैं आपको गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो आप इजीली एक बार रीड कर पाओ। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप डाउट सॉल्विंग सेशन में आप पूछ सकते हो। ठीक है,
वेरी इजी चैप्टर है, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लेना और जो भी है बोलना। थैंक यू।